Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. So, all of you एक पे गैदर हो गए just to know how to study, but पढ़ना किसी को भी नहीं है, right? हम हमेशा एक टिप्स पे रहते हैं कि हमें टिप्स चाहिए, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बट पढ़ते टाइम पे पढ़ाई नहीं करना है. सबके साथ में ऐसा प्रॉब्लम होता है. So, basically आज का सेशन is very very important for you all to keep in mind कि एक स्टूडेंट ने स्टार्टिंग से एंड तक what struggles she has faced एंड उसके बाद में भी ऑल इंडिया लेवल फर्स्ट रैंक, मतलब अपने आप में एक अचीवमेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है. सो कैसे उसने मैनेज किया? द सेशन विल बी टोटली योर्स, क्वेश्चंस विल बी योर्स, यू विल बी टाइपिंग द क्वेश्चंस, I'll be reading out those questions and she will be answering your questions. So first she will introduce herself, उसने कैसे कैसे क्या क्या किया, and then the session will be open to you all to ask जो भी क्वेश्चन पूछना है रिलेटिंग टू स्टडीज, कि हाउ शी हैज प्लान्ड, कैसे क्या किया, एवरीथिंग यू कैन आस्क. सो आई विल इनवाइट तानिया. Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग. सो हाउ इज योर इंटर्नशिप गोइंग ऑन? Yeah, sir. It's good. बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. So for everybody, I want to tell I joined Reliance Industries Limited for my 21 months long-term internship. Very good. And selection and all सब interview process सब कुछ was smooth? Yeah, sir. It was very smooth. For your information, at least 3 interviews होते हैं in Reliance. So for me, there was only final interview scheduled with the higher authority, and I got selected. मतलब एडवांटेज मिला फर्स्ट रैंक का कि 3 राउंड्स देने नहीं पड़े. Yeah, sir. ये तो गलत बात है. नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ में गलत होता है. No, sir. There were no academic questions. It was just communication skills were checked and all. That's it. Okay. So first you introduce yourself. मैंने एक छोटा सा मतलब लाइक इंट्रोडक्शन सबको दिया हुआ है आपके बारे में. You introduce yourself and the way you studies. Then we'll be opening up the question session, जिसके लिए मेन आज का ये पूरा सेशन हमने अरेंज किया है. There are many students एक ऐसा ड्रीम देखते हैं कि हमको फर्स्ट रैंक लेके आना है, बट कहीं ना कहीं मतलब लाइक एक रहता है ना कि हमारा प्रिपरेशन सफिशिएंट नहीं होता. रैंक के बारे में सोचते हैं बट हम एग्जाम में क्लियर भी नहीं हो पाते. सो हाउ यू हैव मैनेज्ड एंटायर थिंग? पहले से टारगेट करके चला था, रैंक लाना है, क्या है, एवरीथिंग प्लीज आंसर देयर क्वेरीज. स्टूडेंट के प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ and basically how you prepared, what you want to say, and then I'll be starting a question answer session. Okay, sir. So first of all, myself, Tanya Grover, as you all know, I belong to a small town of Uttar Pradesh. I completed my schooling from there only. Then I shifted to Vapi, Gujarat. And then finally, I went Mumbai for CS coaching. Okay, so I was a direct entry student as I completed my graduation. In executive, when I entered, मेरे को अभी भी याद है, मैंने कभी भी लाइफ में लॉ नहीं पढ़ा था. तो when I attended the first lecture of law ना, I thought कि ये law मेरे से नहीं होगा, like उसका language is very difficult. Then I decided I'll attend at least 2 or 3 lectures. उसके बाद मैं decide करूंगी whether I should go further or not. उसके बाद law में ऐसा interest बना, like now it's company law is my favorite subject now. So yeah, executive में sir के guidance में I secured AIR 19. And then finally in professional, I set a goal to secure AIR 1. I remember when I entered now, so I strongly believe in manifestations and visualizations process. So when I entered, I pasted on my vision board that I am gonna score AIR 1. So I wrote there with a picture of mine, AIR 1 CS Tanya Grover, and you all can see here I am. Okay, so now if I tell you about the study pattern, so बेसिकली कैसा रहता है ना, जो सर पढ़ाते हैं आपको वो डेली रिवाइज करना है. दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग. इफ यू कंप्लीट इट डेली ना, तो एंड में आपके पास बर्डन कम होगा. ओके, सो अगर आप उसको डेली रिवाइज करते रहोगे तो दैट्स द बेस्ट थिंग. उसके बाद व्हेन यू स्टार्ट योर रिवीजन, तो जब भी आप फर्स्ट रिवीजन करोगे, थिंक लाइक कि आप ऐसे पढ़ रहे हो लाइक टुमारो इज योर एग्जाम.
तो आपको फर्दर रिविजन्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो कैसा रहता है ना, what I did कि मैंने जैसे I used to make time tables, okay, so I suggest you all कि आप time tables बनाओ। अगर हम time tables के according जाते हैं, हम अपने ऊपर ट्रैक रख सकते हैं कि हमने क्या सोचा था, हमने क्या किया है, उसके अकॉर्डिंग we can crack these exams। and basically I would like to say hard work सब करते हैं। CS is not only about study, you have to focus on different things also। अब कैसा रहता है, बिकॉज जो भी सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, हम सबको पता है। तो बीच में बहुत सारा बोर होता है कि नहीं यार अब नहीं हो रहा, अब मेरे को छोड़ देना चाहिए। तो यू शुड कीप योर बुक्स असाइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नेवर क्विट योर हॉबीज। जब भी आपको बोर हो रहा है मत पढ़ो उस टाइम पे। इट्स बेटर टू डू दोज थिंग्स व्हाट मेक्स यू हैप्पी। लाइक अपने बैलेंस करके चलो लाइफ में, अपने आप को सेटिस्फाई रखो। जो भी आप कर रहे हो एटलीस्ट इतना रखो कि हाँ मैंने आज के दिन कुछ नया किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ नहीं किया। लाइक अगर आपके घर पे कोई फंक्शन है या यू वांट टू गो समवेयर, तो आप एटलीस्ट 5-10 मिनट्स 15 मिनट्स भी पढ़ रहे हो ना, तो दैट ऑल्सो मैटर्स कि एटलीस्ट आपने पढ़ा है। यू डोंट डिच योरसेल्फ, ओके। सो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जाओ, प्लान करके जाओ, everything is like easy, smoothly होगा, कुछ टेंशन नहीं आएगी। Yeah, so now I am ready to take your questions. Sir, you can start taking their questions. Okay. So line by line questions सब लोग अपने chat box में डालते जाएंगे। The very first question, what was your daily routine? How many hours you used to study? And मतलब like कैसे मैनेज किया with a vast portion? Yeah, okay. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई नेवर काउंटेड आवर्स, मैंने कभी भी आवर्स काउंट नहीं किए हैं। सो मेरा सिर्फ बेसिकली वही रहता था, जो मैंने प्लान किया एटलीस्ट मेरे को उतना करना ही है। फिर मैं दिन में कर रही हूँ, रात को कर रही हूँ, दैट डजंट मैटर। आई प्लान्ड समथिंग एंड आई नीड टू डू दैट ऑन द सेम डे। दैट वाज माय रूटीन। So you never मतलब have seen the number of hours कि दिन में 8 घंटा 12 घंटा 14 घंटा सब लोग ऐसा सोचते हैं। तो how many hours actually? फिर भी कुछ एवरेज सेट होगा कि मुझे 5 to 6 hours पढ़ना है। सर एवरेज जैसा कुछ भी सेट नहीं था। इट इज ऑल अबाउट लाइक टू कंप्लीट माय टारगेट। लाइक द शेड्यूल आई सेट, वो मेरे को कंप्लीट करना है, दैट वाज माय टारगेट। बट हाँ, एक दिन आई डिसाइडेड, लाइक अभी ऐसा था कि आई प्लान किया मेरे को AIR 1 चाहिए ही। तो आई थॉट कि लोग कैसे इतना 20 घंटा 22 घंटा कैसे पढ़ लेते हैं। सो दैट डे आई स्टडी फॉर 22 आवर्स। वो एक दिन था कि मैं 22 आवर्स पढ़ी थी। Yeah, उसके बाद it is all basically about my schedule. Like I was going according to my schedule only. Okay, next question and काफी इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली मतलब लाइक कोरोना टाइम जैसे अभी चल रहा है एंड एज ए स्टूडेंट बाहर जब इतना अनसर्टेनिटी लगता है तो यूं लगता है कि मतलब लाइक अवॉइड करना चाहिए, जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तब हमें एग्जाम देना चाहिए। सो माइंड में यही थॉट प्रोसेस चालू है कि वेदर वी शुड गिव एग्जाम्स और नॉट, और सिचुएशन को नॉर्मल होने दे क्या है। तो आई थिंक यू आल्सो फेस द सेम सिचुएशन, योर एग्जाम वाज शेड्यूल्ड ऑन जून 2020 बट मतलब लाइक जून के एग्जाम ही कैंसिल हो गए थे। सो व्हाट वाज द सिचुएशन, हाउ यू फेस दिस एंटायर इशू? Yeah, okay. So as sir told you that my exams were scheduled in June 2020, then it was merged with December 2020. So at that point of time situation ऐसा था कि हर जगह पैनिक हो रहा है एंड यू आर लाइक आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे सबके साथ होता है वैसे मेरे साथ भी हुआ था कि अब नहीं हो रहा है, कि मेरे को छोड़ देना चाहिए सर, अभी जून में एग्जाम होगा तो भी मैं नहीं दूंगी, आई विल गो फॉर दिसंबर। ऐसे सब थॉट्स आते हैं। देन आई डिसाइडेड कि ये सब सोचने से बेटर है मैं इस टाइम को यूटिलाइज करूं। लाइक जून अटेम्प्ट था तो ऑब्वियसली जून तक प्रिपरेशन हो चुका था। देन आई डिसाइडेड कि जून टू दिसंबर का जो टाइम है मैं इसको बेस्ट वे में यूटिलाइज कर पाऊं ताकि मैं और अच्छा स्कोर कर सकूं। लाइक ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को किसी से बेटर करना है। इट वाज जस्ट लाइक फॉर मी एज आई सिक्योर्ड AIR 19 एंड एग्जीक्यूटिव ना, तो मेरे को सिर्फ ऐसा था नाउ आई वांट बेटर देन दैट, नथिंग एल्स।
तो मैंने उस टाइम को वैसे ही यूटिलाइज किया। और हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि आप सेम चीज को बार बार पढ़ रहे हो। अभी कोविड सिचुएशन में ऐसा हो रहा होगा, अगर आई डोंट नो अभी एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे कि नहीं, एंड आई होप नहीं हो। तो उससे उस सिचुएशन में मैंने क्या किया, मैं यूट्यूब वीडियोस मतलब लाइक आई कीप ऑन टच, लाइक ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। तो मैं थोड़ा थोड़ा यूट्यूब वीडियो देखती रहती थी। एंड आई वुड लाइक टू ऐड हेयर, यूट्यूब वीडियो आप तभी देख सकते हो जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका हो। लाइक जब भी यू आर कंसेप्चुअली क्लियर अबाउट ऑल द थिंग्स, देन ओनली यू कैन गो फॉर यूट्यूब वीडियोस। बिकॉज हर एक टीचर का मतलब पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। सो अगर आप कंसेप्ट क्लियर करने के बाद देख रहे हो ना, तो आपको वो हेल्प करेगा। बट इफ यू आर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फिर शायद वहाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी में प्रॉब्लम आएगा। तो रिविजन के लिए यू कैन गो फॉर दैट। ओके, सो इस सिचुएशन में आपको यही करना चाहिए इस वक्त कि आप पेपर सॉल्व पे ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा इस सिचुएशन का फायदा उठाओ कि आप पॉजिटिवली रहो। लाइक आई एडेड बिफोर कि सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बहुत सारी चीजें यू नीड टू मैनेज। एंड इस जर्नी में थ्रू आउट पॉजिटिव रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पॉजिटिव रहो और कुछ नहीं, लाइक एवरीथिंग विल गो स्मूथली। ओके, एट व्हाट टाइम यू यूज्ड टू स्टडी? मतलब लेट नाइट पढ़ना अच्छा रहता है या मॉर्निंग पढ़ना अच्छा रहता है? देयर वाज अ फिक्स टाइम पैटर्न व्हेन यू यूज्ड टू स्टडी? सर ऐसा ये सबकी चॉइसेस होती है। मतलब कोई मॉर्निंग में पढ़ पाता है, कोई रात को पढ़ पाता है। सो दे कांट गो अकॉर्डिंग टू मी ना। फॉलो करना चाहते हैं टॉप रैंकर को, इसके लिए दे आर आस्किंग यू। नहीं सर, बट इट इज बेसिकली पीपल परसेप्शन ना, वो उनको कौन सा टाइम ज्यादा सुटेबल है। लाइक फॉर मी, इफ आई टेल यू कि मेरे को दिन और रात पे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को ये फर्क पड़ता है कि जब मेरे माइंड में जा रहा है, लाइक मैं कितना प्रोडक्टिवली पढ़ पा रही हूँ, रेदर देन आई नेवर काउंटेड आवर्स, जस्ट बिकॉज मैं कितना प्रोडक्टिवली पढ़ पा रही हूँ, मैं उस पर फोकस करती हूँ। तो जिस टाइम पे मैं ज्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ पाती हूँ, मैं उस टाइम पे पढ़ती हूँ। फिर वो दिन हो रात हो, दैट डजंट मैटर। ओके, अभी एक इंटरेस्टिंग डाउट है। मतलब लाइक सिंस अभी सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, तो हमें बहुत सारे क्लासेस के ऐसे नोट्स दिखते हैं, एंड आई हैव ऑलमोस्ट 5-6 क्लासेस के नोट्स। सो हाउ शुड आई स्टडी? शुड आई रीड देम फ्रॉम ऑल द नोट्स या मुझे कुछ पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना चाहिए? हाउ मतलब स्टडी मटेरियल इज यूजफुल? तो मैं कैसे पढूं? बिकॉज आई एम वेरी जम्बल्ड अप कि मतलब लाइक 4-5 क्लासेस के नोट्स मैंने इकट्ठे तो कर लिए, बट मैं पढूं कैसे उनमें से? ओके, सबसे पहली चीज फॉर एग्जीक्यूटिव एंड फॉर प्रोफेशनल टू, आई वुड लाइक टू से कि आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स पढ़ो। लाइक उन्होंने अगर मॉड्यूल्स इशू किए हैं, तो दे ऑल्सो एक्सपेक्ट कि आप मॉड्यूल्स पढ़ के जा रहे हो, आप मॉड्यूल्स वाली चीजें लिख रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप डिट्टो वो वर्ड्स लिख रहे हो। लाइक व्हाट आई डिड ना, मैं कंसेप्ट्स पढ़ लेती थी, देन आई यूज्ड टू लाइक take some keywords from the module and then I used to write it in my own language. I never, मैंने learn नहीं किया कभी ऐसे। मतलब मैं बोलूँ कि मैंने वो modules की language learn की हो, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। Okay, so now coming back to your doubt, 5-6 बुक्स से बेटर है just go for single book. Okay, अगर आप शिफ्ट करते जाओगे ना, that will be problematic for you only. कंटेंट सेम होगा, लैंग्वेज अलग होगी, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको लगेगा यार ये मैंने वहां पे ऐसे पढ़ा था, यहाँ पे ऐसे लिखा, जबकि बात सेम होगी। बट अब बार बार उसको पढ़ोगे तो पजल अप हो जाओगे, इधर आप कुछ और पढ़ रहे हो, इधर आप कुछ और पढ़ रहे हो। सो बेटर गो फॉर सिंगल थिंग ओनली। कभी भी 4-5 चीजों के पीछे मत भागो। इफ यू हैव स्टार्टेड विद अ सिंगल थिंग ना, जस्ट फॉलो दैट। एंड मेरा अकॉर्डिंग टू मी, आप मॉड्यूल्स पढ़ो, दैट्स इनफ। मॉड्यूल, स्कैनर, पेपर सॉल्विंग, CA, CMA तीनों के पेपर सॉल्व कर लो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिलेबस और सब्जेक्ट्स आर सिमिलर, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर सिमिलर। अगर हम पूरा सब्जेक्ट नहीं देखते तो बट चैप्टर्स तो सिमिलर ही होते हैं। सो यू कैन गो फॉर दैट। ओके, सीएस में इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऐसा है कि पोर्शन बहुत वाइड है, मतलब बहुत ज्यादा है, कभी खत्म होते हुए दिखता ही नहीं है। सो हाउ यू मैनेज सच अ वाइड पोर्शन? कैसे मैनेज किया? मतलब कैसे शेड्यूल, कैसे रिवीजन एंड ऑल? यस, तो सर सिलेबस वाइड है, वो चीज है। मतलब जब हम पढ़ते हैं ना, हमें कंटिन्यूअसली यही लगेगा यार मैंने आज ये पढ़ लिया, कल तो मैं ये भूल जाऊंगी। फिर अब मैं और आगे आगे पढ़ते जा रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं पीछे का भूलते जा रही हूँ, पर ऐसा कभी होता नहीं है। ये चीज हमारे माइंड में होती है
कि ऐसा होगा, पर ऐसा ना कभी होता नहीं है। तो आपको इसके लिए क्या करना है ना, जस्ट कीप ऑन डूइंग द थिंग्स दैट योर फैकल्टी इज टीचिंग यू इन क्लासेस, डू इट ऑन द सेम डे। नंबर 1, आप सेम डे पे करोगे तो क्लासेस के एंड होते होते ना आपका एक बार पढ़ के सब हो जाएगा, उसके बाद आपको रिवीजन करना है। ठीक है, जब भी आप रिवीजन स्टार्ट करते हो तो आपको वो ऑटोमेटिकली वो चीजें कलेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर एंड इफ यू आर रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद एग्जाम्पल्स ना, तो वो केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स बहुत हेल्प करते हैं। लाइक एग्जीक्यूटिव में कैसा होता था, सर हमें कंपनी लॉ पढ़ाते थे, तो उसको कंपनी लॉ को केस स्टडीज के साथ वो मर्ज करके पढ़ाते थे। ओके, तो जब भी हम रिवीजन करने बैठते हैं ना, तो वो केस स्टडीज रिकलेक्ट होते हैं। जब भी वो केस स्टडीज रिकलेक्ट होंगे, आपको याद आ जाएगा पूरा प्रोविजन की इसमें क्या होता है एग्जैक्टली, तो वो वहां पे सिलेबस कवर हो जाता है। हाँ, और एक चीज और, अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि एंड डे पे कैसे रिवाइज करें, बिकॉज वास्ट है सिलेबस बहुत ज्यादा। तो उसके लिए अब मेरा ऐसा था कि मैं कभी भी नोट्स नहीं बनाती थी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मॉड्यूल से पढ़ना इज बेस्ट। तो मैं क्या करती थी कि मॉड्यूल में लाइक एक पैराग्राफ है, उसके बाजू में एक कीवर्ड लिख दिया। लाइक अब कुछ भी ऐसा लिख दिया कि वो पैराग्राफ को वो डिनोट करेगा। ओके, when you read that keyword ना, आपको वो पूरा पैराग्राफ याद आना चाहिए, ऐसा कुछ कीवर्ड होना चाहिए। सो आई यूज्ड टू डू इन दिस वे, ताकि मैं एंड डे पे इजीली रिवाइज कर पाऊँ। ओके, तो मतलब ये पॉइंट सबका ये आ रहा है कि नोट्स जो हमको क्लासेस से मिलते हैं वो बेटर रहते हैं, या हम खुद के सेल्फ नोट्स बनाए वो ज्यादा बेटर रहते हैं? आपने एग्जैक्टली क्या किया था, मतलब क्लासेस के नोट्स पे रिलाई किया था या खुद के सेल्फ नोट्स बनाए थे? ओके सर, मैंने अभी मेंशन किया, नोट्स तो मैंने कभी बनाए नहीं। मेरे नोट्स का मतलब था मॉड्यूल में साइड में लिख देना कि इसका मतलब ये है। ओके, तो मेरे लिए तो वही बेटर था, बिकॉज मेरे को ऐसा आई नीड टू लाइक रीड होल मॉड्यूल 1 day बिफोर एग्जाम। दिस इज हो द जाता है, मैनेज हो जाता है इतने सारे पेजेस लास्ट डे पढ़ पाना? कुछ तो शॉर्ट नोट्स करा होगा। हाँ, वो मैनेज कैसे हो जाता है, बिकॉज जब यू कीप ऑन रिवाइजिंग ना द सेम थिंग, तो आपको पता है इस पेज पे क्या है, एंड obviously you are writing that keyword, so if you read that keyword na, you can easily recollect the things. तभी आपको पूरा पेज पढ़ने नहीं बैठना, and that's practically not possible. So important वही है कि आप if you are a kind of person you are making notes of your own, तो वो सबसे बेटर है। क्लासेस के नोट्स में भी कैसा रहेगा, ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो ना, यू नो आपने किस चीज को क्या इंटरप्रेट करके लिखा है। ओके, अब आपको पता है कि आपने इस चीज को इस वे में इंटरप्रेट किया था, आपका ये कीवर्ड है, अभी वो कीवर्ड विल हेल्प यू ओनली, और किसी को हेल्प नहीं करेगा। क्लासेस के नोट्स में भी अगर आप देखोगे तो वो लोग आपको इलैबोरेट करके देंगे, लेकिन उतना शॉर्ट नहीं होगा जितना आप खुद कर सकते हो। सो इट्स बेटर फॉर यू इफ यू मेक योर ओन नोट्स, इट विल हेल्प यू ड्यूरिंग एग्जाम्स। इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेज वाइज नोट्स, आपने मॉड्यूल में साइड में उसके नोट्स बना लिए, दैट्स व्हाट। या ओके, अभी एक स्टूडेंट का एक एंड बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आई एम नॉट सो गुड एट इंग्लिश, तो व्हेन आई रीड उस चीज को आंसर में प्रेजेंट कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। सो हैव यू फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम? इफ यस, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? ओके, इंग्लिश वाला प्रॉब्लम तो नहीं आया, लेकिन जैसे मैंने बताया था ना, लॉ का प्रॉब्लम आया था कि हाउ टू इंटरप्रेट, हाउ टू राइट, because I had studied for the first time. So what I did at that point of time, and I would suggest you for this English problem, you can go and solve the papers. Okay, if you write the papers na, agar aap likhoge and then just try to figure out what all things you are doing wrong. Okay, जहां पे आप गलत हो रहे हो उस चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। if you keep on thinking यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं लिख नहीं पाऊंगी, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। ओके, अभी प्रॉब्लम आई है तो आपको उसको सॉल्व करना है। तो फॉर सॉल्विंग दैट व्हाट यू कैन डू इज जस्ट ट्राई टू राइट द आंसर्स। ओके, फिर आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आप कहाँ पे प्रॉब्लम में हो, देन यू कैन इम्प्रूव दैट। ओके ओके, talking about like executive and professional both, executive में scored 19th rank, so have you planned for it or it was a byproduct की rank अपने आप आ गया और you kept on working, or you planned for a rank start right from beginning? ओके, इफ आई टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव, वहां पे मेरा सिर्फ मोटिव था पास होना,
क्योंकि मेरे को ऐसे रैंक वैंक का कुछ था नहीं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इट वाज जस्ट लाइक आई वांट टू क्रैक दीज एग्जाम्स, दैट्स इट. ओके, सो उधर रैंक जैसा नहीं था, बट इन प्रोफेशनल व्हेन आई एंटर्ड, मेरे को ऐसा हो गया था कि अब मेरे को AIR 1 चाहिए. बट देन आई थॉट कि यार आई एम आस्किंग फॉर मच मोर थिंग जो मैं नहीं कर पाऊंगी. बट उसके बाद आई लेफ्ट दिस थिंग फ्रॉम माई माइंड एंड देन आई कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क एंड आई वॉज एंजॉइंग द प्रोसेस ओनली. बस ऐसा ही था कि मैं अपना टाइम टेबल फॉलो करूंगी. आई विल डू, मतलब जो मेरे लिए अच्छा है मैं वो करूंगी. एंड आई विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ इन प्रोफेशनल. I'll improve myself from executive and professional. This was the only thing for me. So in short, professional you targeted for a rank, but at executive it was a byproduct. Yeah, totally. And even I remember when you got rank at executive level, मैंने शायद ऐसा sentence बोला था कि तेको rank कैसे आ गया. Because I want to tell all the students, ये जितनी मस्ती क्लास में करती थी या जितना इसको घूमना यहाँ वहाँ रहता था, इसको देख के लगता ही नहीं था कि ये ऐसा कुछ स्कोर कर पाएगी. मतलब somehow कभी-कभी ऐसा होता है ना कि फैकल्टीज नेगेटिव मोटिवेशन देते हैं, तो वैसे दो I wanna add here, मिला होगा नेगेटिव मोटिवेशंस कि क्लियर ही नहीं हो पाएगी इस तरीके से. तो I wanna add here, मतलब start from very start, there are some faculties who keeps on saying it to me कि नहीं तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगी. And seriously वो जो line थी ना, that you have also told me, वो मेरे माइंड में इतनी चलती थी ना कि मतलब मैंने रैंक लाया तो भी सर मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे को ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा कि तेरे को रैंक आ गया. देन आई थॉट कि नहीं, अभी मेरे को कुछ तो बड़ा करना है. चलो, that was motivation for first rank. Yes. Definitely hard work. See, एक होता है कि स्टूडेंट खाली पढ़ता रहता है. I've seen many students doing CACS. They sit for like 10 to 12 hours in a day. They keep on studying entire day, but they end up like not clearing the examination. तो what do you think is the problem कि इतना पढ़ने के बाद भी कोई स्टूडेंट क्लियर कैसे नहीं हो पाता है? हाँ सर, मैं वही तो बोल रही थी, सिर्फ पढ़ाई नहीं है. ये जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज है ना, दिस इज नॉट ओनली अबाउट स्टडी. You need to balance each and everything. मतलब you should not quit your hobbies. You should always be positive throughout the journey. आपको अपने concepts clear रखने हैं. Hard work कर रहे हो but साथ में smart work भी करो. Like you are studying for 10 to 12 hours और वो actually में more than enough होता है. अगर आप 10 to 12 hours पढ़ रहे हो ना, तो वो more than enough है कि आप पढ़ रहे हो इतना. तो आपको strategize करना है हर एक चीज को. मैंने पहले ही बोला, आप पढ़ रहे हो, अच्छा है, टाइम टेबल्स बनाओ, उसको फॉलो करो. अगर आप वो कर रहे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है पेपर सॉल्व करना. इतना इम्पोर्टेंट है ना कि लाइक आपने ना पढ़ लिया, लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में ऐसा होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको समझ ही नहीं आता कि कहाँ से आ गए. आप एकदम ब्लैंक हो गए कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया. बट एक्चुअली में वो आपने पढ़ा होता है, और वो बिकॉज इंस्टीट्यूट ना ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं. फॉर दैट आई एम सजेस्टिंग यू to solve the papers as much as you can. Solve the papers. Okay. Which subject you found the most difficult at executive and professional level? Sir, difficult जैसा कुछ नहीं होता. Every subject has its equal importance. ठीक है, तो if we see from that perspective कि ये difficult है, तो वो difficult होगा. If we look the subject like I can do it, if I am facing any difficulty in that, I'll put my more efforts in it. I'll put more efforts from other subjects. That's the thing. तो difficult जैसे कुछ नहीं होता. It's about कि executive में syllabus बहुत vast है, and वहाँ पे laws cover होते हैं, तो आपको provisions learn करने हैं. And professional is all about theory. Like professional subject is interconnected. All the subjects are interconnected with each other. तो professional में कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एक subject पढ़ रही हूँ. सारे subjects तो फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड में आ रहा है, सेकंड थर्ड में आ रहा है, तो वो पूरा वैसा ही रहता है. तो कुछ डिफिकल्ट जैसा नहीं होता. इफ यू फेस डिफिकल्टी इन समथिंग ना, तो जस्ट ट्राई टू मेक दैट सब्जेक्ट द इंटरेस्टिंग वन, और ट्राई टू मेक दैट सब्जेक्ट योर फेवरेट वन. नॉर्मली ऐसा रिवर्स होता है. लाइक एक स्टूडेंट ने डाला भी है कि मतलब लाइक व्हेन आई सिट आई टेक माय फेवरेट सब्जेक्ट टू स्टडी, बट होता क्या है, पढ़ते मैं ऐसा एग्जॉस्ट हो जाता हूँ कि दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ने का मन ही नहीं करता.
एंड बाय द टाइम मतलब लाइक दूसरे सब्जेक्ट में प्रॉपर बैलेंस प्रिपरेशन नहीं हो पाता. So how should I maintain that balance in all the subjects? Okay, so if I take my example ना, मेरे को कोई अगर किसी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता था, तो what I used to do is when I wake up now, I took that chapter in the very first. ठीक है, सबसे पहले मैं उठते ही वही चैप्टर लेती थी, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका माइंड ज्यादा अच्छे से चलता है, बिकॉज आप फ्रेश होते हो. ठीक है, तो टेक दैट चैप्टर एट द वेरी फर्स्ट, ट्राई टू कवर इट एज सून एज पॉसिबल. उसके बाद जैसे जैसे डे आगे जा रहा है, टेक योर फेवरेट वंस, जो आपको पता है you will be able to do it in 1 hour or 1.5 hour or 2 hour. Do it accordingly. ऐसा करो, मतलब पहले टफ लो, फिर थोड़ा सा इजी लो, फिर एकदम इजी लो, ताकि इससे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा. बैलेंस कैसे बना रहेगा, लाइक आपने अगर टारगेट किया है कि आपको दिन में 5 चैप्टर्स करने हैं, ठीक है, तो आपने फर्स्ट हार्ड लिया, सेकंड उससे थोड़ा सा कम लिया, फिर जब आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे जाओगे ना, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर आप ऐसा रखो जो आप इजीली फटाफट कर पाओ. इससे आपके चैप्टर्स भी कवर हो रहे हैं, इससे ये भी हो रहा है, और दूसरी चीज ये भी हो रही है कि आप मतलब हार्ड भी कर पा रहे हो और जो इजी लग रहा है वो भी कर पा रहे हो. तो मेक इट अकॉर्डिंगली. जब भी आप बोर हो रहे हो, आप सब्जेक्ट छोड़ दो, फेवरेट सब्जेक्ट उठा लो. मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम पढ़ाई छोड़ दो, ऐसा भी नहीं करना है. डिफिकल्ट है, ठीक है, ले लो, उसके बाद थोड़ा इजी ले लो, फिर फेवरेट ले लो, ऐसा कर लो. और बीच में ब्रेक्स लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेक्स लो. थिंक ये चीज सब स्टूडेंट्स को नोट करने जैसी है. व्हेन यू आर सिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डे टू स्टडी, टेक द सब्जेक्ट व्हिच यू फाइंड इट डिफिकल्ट, जो आपका नॉन इंटरेस्टेड टॉपिक है. एंड ओवर द टाइम जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, टेक योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाएगा और पढ़ने के लिए. दैट्स अ वेरी गुड ट्रिक एंड आई थिंक सब स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इसको फॉलो करना चाहिए. ओके मैम, माइंड सेटल नहीं है, बाहर इतना सारा प्रॉब्लम है, lot of disturbance is going out around in mind, and यूं लगता है कि while studying मतलब फैमिली में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, क्योंकि सब डिस्टर्बेंसेस है, सब जने घर पे ही है. तो ऐसी सिचुएशन में मतलब कैसे मैनेज करें, क्योंकि नॉर्मली लाइब्रेरीज ओपन होती है तो हम लाइब्रेरी में जाके पढ़ लेते हैं, बट अभी तो वो भी ओपन नहीं है, तो हम मतलब लाइक फोकस ही नहीं कर पा रहे पढ़ाई पे. तो हाउ शुड वी मैनेज? ओके, इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज जस्ट थिंक द एंड. मतलब एंड सोचो, एंड में कितना अच्छा होगा इफ यू क्रैक दीज एग्जाम्स. उसके बाद की लाइफ, जस्ट थिंक अबाउट दैट. इफ यू विल थिंक दैट वे ना, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट विल डेवलप. लाइक यू विल थिंक कि हाँ, आई वांट टू डू दिस, आई विल डू दिस. कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, आई विल फेस ऑल ऑफ देम, and I will definitely crack these exams, because I know my life will gonna be better after this. So just focus on the end. अगर आप कभी भी throughout this preparation, अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है ना कि like यार नहीं हो रहा, अब तो मेरे को छोड़ ही देना चाहिए या something like that, so just think about the end. Okay, अगर if you think about the end ना, automatically interest will generate within you कि हाँ अभी तो मेरे को पढ़ना ही, अभी तो मेरे को कुछ करना ही है लाइफ में. So you can do this way. How many subjects you used to take in a day? मतलब like we have 8 subjects in executive, 9 in professional. So in a day, how many subjects we should study? Okay. It totally depends on you again, but keep the balance. Okay, please keep the balance between all the subjects. ऐसा ना हो कि आप एक ही सब्जेक्ट के पीछे भाग रहे हो. मतलब कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि वो पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो सेकंड सब्जेक्ट पे जाते हैं. बट अकॉर्डिंग टू मी, यू शुड कीप बैलेंस बिटवीन ऑल दी सब्जेक्ट्स, ताकि एंड में आपको प्रॉब्लम ना आए. एंड में कैसा होगा, जो आपने पहले पढ़ा था ना, वो अभी तक शायद थोड़ा रिफ्रेश ना होगा. तो इसीलिए फॉर दैट आई वुड से कि बैलेंस रखो. एंड मैं तो लाइक अगर एग्जीक्यूटिव में 8 सब्जेक्ट्स थे, तो व्हेन माय रिवीजन डेज वर गोइंग ऑन, तो मैं 4 days in a day लेती थी. 4 subjects in a day I used to take. बट ये प्रॉब्लम एक्चुअली मेरे हिसाब से सब स्टूडेंट्स का ही रहता है कि एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया, I finished almost 5-6 chapters of a particular subject. Then I started another subject, but by the time वो 20-25 days गए, मैंने पहले क्या पढ़ा था मैं भूल गया. सो एक वो प्रेशर आने लग गया कि मतलब कुछ पढ़ा हुआ याद ही नहीं रह रहा, और इतना सारा पोर्शन देखते हुए यूं लगता है अभी और 5 सब्जेक्ट बाकी पड़े हैं. सो वेदर आई शुड अपीयर फॉर एग्जामिनेशन, या मैं उसको 6 महीने डिले कर दूं, अगली बार मेहनत करके मैं दूं, ये भी थॉट प्रोसेस माइंड में आता है. तो वो मतलब लाइक इन शॉर्ट
मेमोराइज कैसे करें, याद नहीं रह पाते सारे सब्जेक्ट्स, एक को पढ़ते हैं तो दूसरा भूल जाते हैं, दूसरे को पढ़ते हैं तो पहला भूल जाते हैं, मतलब इट्स गोइंग ऑन लाइक दैट। सो इसको कैसे सॉल्व करें? ओके पहली बात तो ये ना, ये सिर्फ माइंड में आता है कि मैं भूल गई पिछला, ऐसा होता नहीं है। this never happened, okay, this never happened at least with me. I also used to think the same कि यार मैंने आगे का पढ़ा, अभी मैं पीछे का भूल गई। But as I told you earlier, when you study with the case studies or examples now, when you recollect those case studies and examples, that provision will automatically be recalled by you, okay? तो डोंट थिंक दिस वे कि यार मेरे को पुराना याद नहीं आ रहा, अभी मैं छोड़ देती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। डोंट थिंक दिस वे। when you start your revision again ना, definitely you will be able to recollect those things, so don't worry about it. What should be the strategy for revision? मतलब ये पॉइंट है ना कि जो पहले पढ़ा वो भूल गए, तो रिवीजन के टाइम पे व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी वी शुड फॉलो कि सब याद आए वापस? हाँ, तो जब भी आप क्लास में पढ़ रहे हो ना, as you all know, recorded lectures, live lectures जो भी हो रहे हैं, just please ये चीज ध्यान रखना, make sure you are making your handwritten notes at that point of time. Handwritten notes मतलब just what the faculty is teaching ना, just try to write those things. When you write those things and when you see it later now, as I told you, जो class में हुआ वो you need to revise it on the same day. So when you go back to that topic now, just try to read the module and alongside you what you have written when the faculty was teaching to you, okay? So when you read those lines now, you will definitely be able to recollect the provision easily. So this is the way of revision, this is the way of first revision. तो इन शॉर्ट मतलब कीवर्ड्स साथ साथ में मार्क करें एंड देन उन कीवर्ड्स को रिवाइज करते जाएं। एग्जैक्टली। ओके, आई थिंक ये भी सब चीज स्टूडेंट्स को नोट करना चाहिए। रिवीजन का स्ट्रेटेजी विल बी लाइक दिस ओनली, इफ यू वांट टू रिमेंबर फॉर लॉन्ग टर्म, तो बुक्स के साइड में थोड़े से कीवर्ड्स लिखो एंड बार बार उन कीवर्ड्स को देखो ताकि सब रिकलेक्ट होता रहे बार बार। रनिंग नोट्स बनाओ इन शॉर्ट। ओके, एक स्टूडेंट का है, आई फेल्ड 2-3 टाइम्स इन एग्रीगेट, दो आई स्कोर्ड 40 इन ऑल द सब्जेक्ट्स, बट मेरा एग्रीगेट नहीं हो पा रहा, व्हाट शुड आई डू? आई एम श्योर अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो यू हैवंट सॉल्व्ड द क्वेश्चन पेपर्स, द पास्ट पेपर्स। मतलब this is the only way, if you are able to score aggregate ना, that means your concepts are clear, like concepts तो clear ही है। एक ये चीज हो सकती है और दूसरी ये चीज हो सकती है कि आप पूरा पेपर नहीं लिख रहे हो, ठीक है? तो now let me tell you, the whole year you prepare for those 8 or 9 days, 8 for executive, 9 for professional, okay? तो अभी आप पूरे साल वो 8 और 9 days के लिए पढ़ रहे हो, एंड इफ यू आर नॉट राइटिंग ऑन दैट डे ना, तो आपने जो पढ़ा दैट इज ऑल वेस्ट, बिकॉज एग्जामिनर को नहीं पता, क्वेश्चन चेकर को नहीं पता आपने कितना हार्ड वर्क किया है, ओके? ही डजंट नो कि व्हाट ऑल थिंग्स you have faced at that point of time, okay? So what you can do is आप सिर्फ उस आंसर शीट के बेसिस पे उसको दिखा सकते हो कि you did hard work, okay? तो कभी भी पेपर पूरा लिखकर ही आना चाहिए। डोंट, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आधा पेपर करके आ रहे हो, आप 10 मार्क्स 15 मार्क्स का छोड़ के आ रहे हो। सो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो मे बी दीज टू आर द थिंग्स दैट यू आर नॉट डूइंग। सो आई वुड सजेस्ट टू सॉल्व द पेपर्स, आई वुड सजेस्ट कंप्लीट 100 मार्क्स पेपर, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ओके, एक स्टूडेंट का, प्रोफेशनल का स्टूडेंट है एंड वेरी इंटरेस्टिंग डाउट है। मेरा second examination went very bad. Second examination was very bad, so I decided not to give examinations further. I was very upset because all other friends' paper was good. For all other friends' paper was good, but for me, my paper was very bad. So I decided not to give exams, and I missed out the December examinations because of that. So was it right what I did? This is wrong, a big wrong, okay? So मेरे साथ, if I share my experience in professional, I gave my first exam, I wrote around 6 to 7 sheets, and when I came back at my place ना, I called Keshav sir, I told him कि sir मैंने ना इतने सारा मतलब 6-7 sheets लिख कर आया है, now the paper checker will think कि इसने बहुत ज्यादा लिखा है या इसने फेंका है, something like that, जबकि I wrote to the point things only. तो sir told me कि don't focus, जो हो चुका है उसको भूल जा, now focus on the next exam, okay? So अगर
वो 9 days में आपके साथ कुछ भी होता है, इफ यू फील कि अब ये खराब हो गया, मैं तो पास होने ही नहीं वाली, अब मैं छोड़ देती हूँ, मैं आगे के एग्जाम्स नहीं देती, तो दिस इज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, बिकॉज ये एग्जाम्स में आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, इट इज ऑल लाइक depends, like I am pretty sure सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, there is God's grace too। तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी मिरेकल्स हो सकते हैं। कभी भी ऐसे मत करना कि आप एक I एग्जाम still की वजह से आगे जा remember ही first नहीं। exam के बाद में you were not ready to give examinations further. You and Vidhi also had same kind of problem. You are not planning to give examination further, but सर exam ऐसा दी नहीं और था, first rank आ गया। ऐसा नहीं था कि मैं एग्जाम नहीं देने वाली थी, बट ऐसा जरूर था कि मेरे को लग रहा था मैंने क्या किया, मतलब। और आई सिक्योर्ड AIR1 after that and I scored good marks in first paper also, so I am telling you miracles होते हैं। ओके, तो डोंट लाइक ऐसा डिसीजन तो कभी भी मत लेना, डोंट टेक दिस टाइप ऑफ डिसीजन कि आपको एग्जाम गलत हो गया तो आप जा ही नहीं रहे हो। इससे पता है क्या होगा, अगर आपको लग रहा है ना कि खराब हो भी गया है, तो भी आपको एक तो वो मिल जाएगा कि एग्जाम पेपर आते कैसे हैं। अगर आप सारे पेपर देने जा रहे हो, एक इफ यू थिंक फ्रॉम द अदर वे ना, आपको ये तो पता चल जाएगा कि पेपर कैसे आता है, मेरे को कैसे करना है, मेरे को नेक्स्ट टाइम कैसे तैयारी करनी है अगर गलत हो भी गया है तो थिंक पॉजिटिव इन दैट टू ना। एवरी टाइम अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है ना, ट्राई टू फिगर आउट पॉजिटिव थिंग्स आउट ऑफ दैट। ओके, देन एक स्टूडेंट का इंटरेस्टिंग डाउट है, I have cleared my executive. So when should I go for training? I should do my training after executive or after professional, because till now we are having option that we can go for articleship after professional examinations. So at what time should we start our training? Okay, this is also a choice based question, it's all depends on you, but according to me आपको पहले प्रोफेशनल दे देना चाहिए, then only enter into the corporate world, because what happens is ना कि when you enter before your professional ना, आप एक टाइम पे पजल अप हो जाओगे कि अभी मैं दोबारा से स्टडी करना कैसे स्टार्ट करूं। ओके, बिकॉज there are times when you are under pressure in the corporate world, you need to do some things within the deadlines। Okay, so it's better when you first you complete your studies, then enter into the corporate world, start with your internship and then your job or practice whatever you want to do। This will help you also, because if you enter for the internship now, you will come to know the corporate scenario, and then after that you are going for the job or practice thing, so it will help you in the whole process। ये training related doubt ये है कि when I go for articleship interview, many people who are already CS, they demotivate saying that CS की कोई वैल्यू नहीं है, अच्छा पैकेज नहीं मिलता है, क्यों इस कोर्स में आके फंस रहे हो। तो आई एम वेरी मच demotivated कि whether should I continue with professional or not. Okay, first of all I want to tell you CS is the most prestigious profession। by entering this now, you are able to like interact with the top management directly, you are interacting with the board of directors। okay, ऐसा किसी और प्रोफेशन में आपको नहीं मिलेगा, it is only CS। okay, first of all, and secondly it is all it all depends on your knowledge, it all depends on yourself how you are taking it। like if you focus on the negative na, like I have also seen many posts in last few days कि इतना salary मिल रहा है 30,000 40,000, it doesn't matter। like if you focus on negatives na, then negatives will come back to you, things you attract you will get। now think positively, जहाँ पे अच्छा है वो भी तो फोकस करो, जिसकी अच्छी सैलरी है, जिसको अच्छा पैकेजेस मिल रहा है वो भी तो फोकस करो। इट डजंट मीन कि एक एक मतलब एक इंसान के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे यू आर जजिंग द CS कोर्स, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड बी बट प्राउड। जनरली बहुत सारे प्रैक्टिसिंग सीएस ऐसे स्टेटमेंट बोलते हैं कि कुछ काम ही नहीं है, कुछ वैल्यू ही नहीं है, और मतलब लाइक कंपनीज में अपॉइंटमेंट लिमिट 5 करोड़ को भी अभी 10 करोड़ कर दिया, तो वो प्लेसमेंट्स भी इतने नहीं है, तो मतलब आई एम डीमोटिवेटेड टू कंटिन्यू विद द सीएस कोर्स। देयर आर मेनी कंपनीज जिनको कंपलसरी नहीं होता, देन टू दे अपॉइंट CS, बिकॉज उनका काम बहुत ज्यादा स्मूथली हो जाता है। ओके, सो don't like I don't think you should focus on these negatives।
जस्ट फोकस ऑन पॉजिटिव्स। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लाइक अगर एक तो जगह पे होता भी होगा तो यू शुड नॉट फोकस ऑन दैट ना। Okay, then I remember everything. I studied thoroughly, but in examination I was totally blank. I was not able to decide what to do and from where to start the exam paper. Okay. How should I handle this situation? Okay, this blank वाला thing will happen with all of us. Okay, I am telling you, ये सबके साथ होगा कि आप एग्जाम पेपर देखने के बाद आप ब्लैंक हो गए। ये होता ही है क्योंकि यार ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर ना बहुत ट्रिकी वे में ड्राफ्ट होता है। इजी होगा, you know the provisions, but you are not able to recollect the provisions at that point of time because you are under pressure. If you take all these things, like if you take all these things easily na, if you enjoy the process, if you think कि हाँ हो जाएगा, it's not difficult. Like अगर आप उसको उस वे में लोगे तो कुछ भी difficult नहीं, you can do it. Now coming back to your question from where to start and what to do, एज यू नो आप पढ़ चुके हो, आप एग्जाम देने के बाद ब्लैंक हुए थे, आपको स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना है। फॉर यू स्पेसिफिकली यू आर नॉट गोना स्टार्ट विद स्क्रैच। नाउ व्हाट यू कैन डू इज strategize your revision pattern, okay, and start solving question papers. If you solve the question papers, you will be confident. Like when you appear in exam na, you know you can write anything. Like आप कुछ तो लिख कर आओगे, आप ब्लैंक नहीं छोड़ के आओगे फिर, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे आपके पास वो कॉन्फिडेंस होगा कि आप कुछ लिखकर आप आ रहे हो। Okay. What is stupid sa question hai? I have not started studying till now, and in June I have my examination. What should I do now? Oh my god. I am blank on this question, sir. You can answer this better. बेसिकली इतने लास्ट मोमेंट पे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। लोगों का एक बार पढ़ के नहीं होता, रिवाइज कर रहे होते लोग उस टाइम पे स्टार्टिंग टू स्टडी। सीएस इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में मैनेजेबल नहीं होता। वी नीड एटलीस्ट 3 to 4 months ऑफ स्टडी टू क्लियर द सीएस। मतलब 3 से 4 महीने चाहिए, साथ साथ में पढ़ना पड़ता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में हम सारे कंसेप्ट कर पाए, बट स्टिल इफ यू सॉल्व स्कैनर पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, देयर आर much probability कि you will clear the examination. By the way, मतलब मैंने इसको रिप्लाई डाला था कि ऐसा क्यों कि अभी तक नहीं पढ़ा, तो ये सेइंग दैट मेरे बहुत सारे सीए फ्रेंड्स हैं जो लास्ट के 10-15 दिन पढ़ते और सीएस में पास हो जाते हैं। सो दैट इज द रीजन। मेरे को भी लगा मैं भी 10-15 डेज में मैं कर लूंगा, बट नाउ आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट। शायद यही रीजन था इंस्टीट्यूट ने प्री एलिजिबिलिटी चालू की है ताकि पहले से सीरियस हो एग्जाम के लिए। एंड हाँ, पता मतलब हम लोग पास पेपर पे स्कैनर पे इसीलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि एग्जीक्यूटिव में समटाइम्स ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट ना वही पैटर्न फॉलो करती है। सो नाउ अभी बहुत कम टाइम बचा है, यू कैन ट्राई योर लक, I would say, or as sir suggested you, there are chances you can clear. Now focus on scanner. Should we go for only one group or both the groups together? Because in one group we get 1 day holiday also, but in both groups we are not having any holiday. So we should go for both the groups together or we should go for one group at a time? If you take my advice, please go for both the groups together. Executive ये professional all the 3 groups. Exactly, because professional में तो आपके पास choice ही नहीं है, आपको तीनों groups एक साथ ही देने हैं क्योंकि सब कुछ interconnected है, everything. Like आपका जो open book subject है, that is मतलब if you are choosing insolvency ना, that subject is totally same as your paper 5. So group 2, group 3, group 1, everything is interconnected. As I told earlier, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं अगर कुछ भी पढ़ने जाती थी मुझे रिकलेक्ट होता था कि हाँ ये तो उस सब्जेक्ट में भी है। सो प्रोफेशनल में यू डोंट हैव एनी चॉइस, यू हैव टू गो फॉर all the 3 groups. And executive में I would suggest go for both the groups, please. never think this way कि मेरे को एक ही ग्रुप देना है, ये वाला थॉट भी माइंड में नहीं आना चाहिए। In MCQ we should attempt all the questions because there is negative marking, or should we avoid certain questions? Sir, as my attempt was in June 19, so I have never appeared for MCQs. Okay,
तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरे को देना पड़ेगा। देखो बेसिकली इफ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर लेस देन 50-60 मार्क्स, देयर आर वेरी रेयर चांसेस दैट यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने 50 मार्क्स ही वो सारे के सारे सही हो जाएंगे। सो ऑन एन एवरेज 70 to 80 मार्क्स का मिनिमम अटेम्प्ट होना जरूरी है। एंड कभी ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चंस के आंसर हमें नहीं आते हैं और you have marked only 40-50 correct answers in the MCQ pattern, then for the remaining questions go for a negative strategy. मतलब आप ऑप्शंस देख के देखो कौन कौन से ऑप्शंस नहीं हो सकते, रिमूव द 2 ऑप्शंस जो तो फॉर श्योर नहीं हो सकते, यानी अब 2 में से आंसर मार्क करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब 50% हो गया रॉन्ग होने का। थिंक इन सच मैनर कि अगर मैंने मतलब लाइक 7 क्वेश्चंस रॉन्ग किए तो मेरा 1 मार्क कटता है। I'll repeat, 7 क्वेश्चन रॉन्ग पे 1 मार्क कटता है। कैसे? 4 मार्क्स पे 4 रॉन्ग होने पे 1 मार्क्स जाता है, बट कोई भी फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन को इंस्टीट्यूट राउंड ऑफ एज 1 कर देता है। यानी जैसे अगर किसी स्टूडेंट का समझो 42 पॉइंट मतलब 42 पॉइंट समथिंग मार्क्स आया, 42.33 आया, तो उसके मार्क्स मतलब 43.25 आया, तो उसके मार्क्स बाय डिफॉल्ट 44 हो जाएंगे। कोई भी फ्रैक्शन होगा तो हायर नंबर पे जाएगा। यानी अगर मैंने 5 रॉन्ग किए, 6 रॉन्ग किए, 7 रॉन्ग किए, तो मेरे मार्क्स फ्रैक्शन में है। द मोमेंट मैंने 8th रॉन्ग किया, देन मेरा सेकंड मार्क कटता है। सो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, 7 में से कोई एक भी राइट हो गया तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, और 7 रॉन्ग होने पे 1 मार्क जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू मी, जो क्वेश्चन एकदम ही नहीं आता, मतलब बिल्कुल भी नहीं पता उसके बारे में, अवॉइड सच क्वेश्चंस, और वैसे क्वेश्चन 5-10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सो यू शुड अटेम्प्ट एटलीस्ट 70 to 90 मार्क्स के बीच में पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी है एमसीक्यू का, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। तुम अगर खाली 45-50 मार्क करके आओगे और उसमें से कुछ गलत हो गए 4-5, तो तुम्हारे यूं ही मार्क्स चले जाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर दैट एमसीक्यू पेपर। सो 70 to 90 के बीच में आइडियली मार्क होना चाहिए फॉर ऑल द एमसीक्यू पेपर्स। Okay. How you prepared for open book examination? Professional student का क्वेश्चन है। Okay, sir. So for insolvency, as I opted insolvency, I told you earlier, it is similar with CRI paper 5 part 2, and there are only 3 chapters which are different in insolvency subject, so you can go for it. And for MCS, that case study thing, you should revise at least 3 to 4 times. आपका case study पढ़ के होना चाहिए। अगर ऐसा होगा ना, तो you will be able to collect the case study in exams, because sometimes what happens is you think the case will be in company law chapter, but exactly it will be in competition. So यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि कई बार ऐसा होता है, कुछ केसेस हैं जो इधर भी हैं उधर भी हैं, सिमिलर से हैं. So that's why I'm suggesting you to go for 3 to 4 times reading of MCS paper. Okay, yeah. Okay. ये स्टूडेंट का डाउट बहुत Yeah, sir, one more thing I want to add. Please refer to index of MCS. Okay, that will be very helpful. First of all, focus कि आप MCS की case studies को recollect कर पा रहे हो. If you are not able to recollect them ना, then index will help you a lot at that point of time. Okay. स्टूडेंट का एकदम ऐसा genuine सा डाउट है. How many times should we revise the entire portion? As many times as you can. How many times you revised? So please don't ask this question to me, because I don't know how many times I revised. I literally don't know. नहीं, but सबको जानना है फर्स्ट रैंक लाने के लिए कितनी बार रिवाइज करना पड़ता है पोर्शन. सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब रिवीजन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है, बट दैट डजंट मीन कि जितनी बार मैंने रिवीजन किया उतनी बार आप रिवीजन करके यार वन लाओगे. दिस इज नॉट द केस. ओके. देन अभी स्टूडेंट का डाउट है, I have failed in both the groups, but I am giving one group. Is it a good decision? Actually, if I answer this question, you have already studied both the groups. You are not going to start it from the scratch. So I think you should go for both the modules. आपको सिर्फ रिवाइज ही तो करना है, ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ entirely नया पढ़ रहे हो. This is not the case. You just need to revise things. So just go for both the modules, because both the modules में आपको फायदा होगा aggregate का.
My paper is never completing on time. From past 3 attempts, I'm unable to solve for more than 80 marks in the examination. What should I do? Paper solving. Please do it. As many papers you can solve. Home, it takes me almost 4 hours to solve the paper. How to complete it in 3 hours? That is the problem ना. If you are taking 4 hours at your home, so आपको पता चल जाना चाहिए कि आप एग्जाम में भी उसको पूरा नहीं करने वाले हो. Now you should like, अब आपका पढ़ाई हो चुका है, you are facing the problem of completing the paper. Okay, so your only focus right now should be to solve the paper at your home and try to complete it within 3 hours. मतलब एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, 4th टाइम कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा, एवरी टाइम कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा. इफ यू कीप ऑन थिंकिंग कि यार मेरा तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ना. यू शुड कीप ट्राइंग. एवरी टाइम you will see the change in yourself. Okay, and one genuine question. Institute modules में बहुत सारे changes करता रहता है. We are seeing many supplements uploaded on institute website every time, and those supplements are just giving only page numbers, what changes have been made. So it becomes very difficult to analyze how to study from the module and those supplements. So how did you manage this particular way? How did you cover all the amendments? Okay. सबसे पहली बात कि जो सप्लीमेंट्स इशू होते हैं ना, उसको देख के डरना नहीं चाहिए, बिकॉज कई बार इंस्टीट्यूट सेम चीज सप्लीमेंट में डाल देता है जो आपके मॉड्यूल्स में होते हैं. मतलब दिस इज माय एक्सपीरियंस. अब सर नोज बेटर देन मी. ओके, सो ऐसा मेरे को लगता है कि समटाइम्स इट हैपेंस कि इंस्टीट्यूट सेम चीज सप्लीमेंट में डाल देता है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कवर योर मॉड्यूल, देन मतलब strategize your time to cover the amendments, because amendments are very important and institute keeps on asking things from amendments. Okay, so supplements पे आप तब जाओ जब आपके modules हो जाएं. पहले modules पे focus करो, फिर आप supplements पे जाओ. और अगर आप ज्यादा time नहीं दे पा रहे तो at least try before exam you should read at least once. एक बार तो आप supplement पढ़ ही लो ताकि कुछ भी आए you can relate and write. नाउ स्टूडेंट का क्वेश्चन थोड़ा सा ऑकवर्ड है एंड मेरे लिए थोड़ा ऑफेंडेड लग रहा है कि एट एग्जीक्यूटिव लेवल आई एम स्टूडेंट ऑफ नॉलेज एक्सप्रेस. एट एग्जीक्यूटिव लेवल I have attended all the lectures and sir's teaching was awesome, but at professional I was feeling something helpless way. It was not up to my expectation I have seen at executive level. So did you had the same kind of experience? Yeah, at the very start I think the same way as you are thinking right now, but अभी मेरे को वो चीज रियलाइज हो चुकी है कि अगर सर वैसा नहीं करते तो मेरे कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर नहीं होते. नाउ आई वांट टू ऐड एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ वाज टॉट बाय केशव सर एंड वो इतना अच्छा था कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके थे. तो प्रोफेशनल में ना ऑल्दो कंपनी लॉ सब्जेक्ट नहीं है, बट इन एवरी सब्जेक्ट देयर इज समथिंग 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 कि आप कुछ ना कुछ तो है कंपनी लॉ से रिलेटेड. तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो समझने की मतलब लाइक फैकल्टी को पढ़ाना जरूरी नहीं था. और मेरे को लगता है अब मेरे को फील होता है कि सर ने जो किया वो ठीक किया, बिकॉज मैंने मेरे अकॉर्डिंगली समझा, मेरे अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट किया, मेरे अकॉर्डिंगली कंसेप्ट्स मेरे दिमाग में गए. दैट्स द बेस्ट थिंग, बिकॉज आई नो हाउ आई स्टडीड, आई नो व्हाट ऑल कंसेप्ट्स आर देयर इन द मॉड्यूल्स. सो मैं वो चीज रिकलेक्ट करने में मेरे को इजी गया. नाउ अगर कुछ भी डाउट होता है तो सर इज देयर टू सॉल्व. बट हाँ, इफ यू आर के स्टूडेंट, सो सर प्रोफेशनल में ये चीज करते हैं, वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और बट एट द एंड आपको समझ में आएगा कि वो चीज सही भी होती है. और एक चीज और सर बहुत वियर्ड करते हैं, वो ये होती है कि सर सिलेबस पढ़ाने से पहले ही बोलते हैं कि पेपर सॉल्व करो. वो टाइम पे इतना गुस्सा आता है कि यार मैंने पढ़ा तो है नहीं, मैं सॉल्व कैसे करूं, मैं क्या लिखूंगी मैं. और सर ने इवन पेपर सीरीज भी रखे थे. आई रिमेम्बर सिलेबस नहीं हुआ था बट सर ने पेपर सीरीज रखे थे. वो टाइम पे मैं सर के पास गई, सर मेरे को देने ही नहीं है, और मैंने 1-2 पेपर नहीं दिए. उसके बाद सर कॉल्ड मी, सर टोल्ड मी कि तुझे देने हैं तो जो भी लिखना है लिख. तो मेरे को वो टाइम पे वही लगता था, यार मेरे को आता तो नहीं है, मैं क्या लिखूं. बट वो चीज ना इतनी हेल्पफुल रही कि जब मैं मॉड्यूल्स पढ़ रही थी मेरे को समझ में आया यार इसका ऐसा क्वेश्चन बना था, तो मैं उस वे से पढ़ रही थी. आर यू गेटिंग मी? लाइक you know how a paper setter sets the question.
if you study from that perspective ना, then it will be helpful for you कि आपको पता है कि आपको किस वे में पढ़ना है, क्या strategies लगा के पढ़ना है. So paper solve करना is very important, very very important. प्रोफेशनल ज्यादा इजी है या एग्जीक्यूटिव इजी है? सर इसका कोई आंसर ही नहीं है. लाइक स्टूडेंट पढ़ते टाइम ऐसा इसने क्वेश्चन पूछा है कि एग्जीक्यूटिव इज टफ और प्रोफेशनल इज टफ. अच्छा, I guess executive. Executive is more tougher, and in fact executive will set the entire base. Yeah. एक बार अगर मतलब लाइक एग्जीक्यूटिव के कंसेप्ट्स क्लियर है तो प्रोफेशनल मच मोर इजियर हो जाता है. Anyway, professional subjects are very generalized. You know, all the subjects are very generalized. ओके सो अभी जब स्टूडेंट ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो मैं भी पूछ लेता हूँ, शुड आई चेंज माय स्टडी पैटर्न फॉर प्रोफेशनल और आई शुड गो द वे आई एम गोइंग? You should go the way you are going, because my timetable, my strategies will work for me. Like your strategies, your timetable will work for you because you know your strengths, your weaknesses, your patterns. So you should follow your thing, and the things that you that you feel helpful, you can follow that. ओके आई थिंक इसका आंसर पहले दिया था, बट सिंस एक स्टूडेंट ने पूछा है तो यू विल क्लैरिफाई. Again, I'm a student of Knowledge Express. I see too many YouTube lectures also simultaneously, but I get confused after seeing those lectures. So, is it that I'm doing something wrong? Should I watch other videos or not? Or should I learn from YouTube videos, or should I go for a proper conceptual way? I'm very confused. Okay. As I told you guys earlier, ki, if you are going for YouTube videos, now you can go for YouTube videos, but not for the very first time, because for the very first time, you always need to focus on the concepts. Okay, you can grab things, you can learn things for the first time. You always first focus on the concepts. Okay, अगर आपके concepts clear होंगे ना, then you will be able to write something in exam. ऐसा नहीं होगा you are leaving the paper, आप blank छोड़ के आ रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा if your concepts are clear. Now coming back to the topic for the YouTube videos, आप YouTube videos revision के लिए if देख रहे हो then it's okay, but simultaneously आप इधर भी चल रहे हो, you can't put your both the legs in different boats. Okay, so आप एक ही जगह पे जाओ ना, that's the best thing. अगर आप एक ही चीज फॉलो करोगे वो ही अच्छा है. अगर आप इधर सब जगह भागोगे तो at the end it will be problematic to you, because आप खुद ही पजल अप हो जाओगे, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, अब मैं क्या करूं. So I would suggest, अगर आप YouTube वीडियोस पे जा भी रहे हो, पहली बात तो अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम आएगा ही नहीं. ठीक है, अगर फिर भी जैसे ये लॉकडाउन सिचुएशन हमारे अटेम्प्ट के टाइम पे आ गया था, पढ़ा बहुत टाइम पहले था, एग्जाम दिसंबर में थे, तो कुछ फ्रेशन अप करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो. बट जैसे सर क्या करते थे, जब भी जूम लेक्चर होते थे, हम जूम लेक्चर पे पढ़ते थे, हम हमारे डाउट्स पूछते थे, वो लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं. ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना तो वी कैन टेल सर कि सर प्लीज मेरे को वो पर्टिकुलर चैप्टर का रिकॉर्डिंग चाहिए, तो हम वो दोबारा सुनते थे. हम दोबारा सुन के हमारे जो डाउट्स थे वो हमारे माइंड में हिट होते थे, हमें पूरा कंसेप्ट याद आ जाता था. तो दैट्स द बेस्ट वे यू कैन फॉलो ना. Firstly, clear your concepts, try to revise the things, then ask your faculty to give you the recorded lectures. Okay. How to मतलब study capital market, but I'm finding it very difficult for Capital market, sir. Capital market paper, executive student का question. Okay. Capital market, like SEBI subject is a subject in which you should generate your interest. अगर आप interest generate नहीं करोगे तो वो बहुत difficult जाएगा. I'm telling you. Capital market subject is difficult because वहाँ पे ना technical चीजें हैं. So you must generate your interest in that subject, in that particular subject. That will be helpful to you. In professional, how to plan studies? Okay. Plan studies, there is a simple thing I told you earlier. Whatever your faculty is teaching you in class, just try to revise that on the same day. मतलब it should be your target from the very first day. आपका same day revision होना ही चाहिए. It should be your target.
अगर ऐसा होगा तो along with classes ना your syllabus will be covered at least for months. उसके बाद you can plan your revisions. Okay. I think mostly मेरे सामने जितने भी क्वेश्चंस आए थे मैंने कवर अप किए. मैम, what makes you motivated to study? Okay. What makes me motivated? Okay. It's very simple. Everybody wants to live a, like, happy life, good life, and make my parents proud. मतलब सबका होता है कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊं. So I remember the day मेरा रिजल्ट आया था. So my dad, he was joying like anything, like he was dancing. He was saying कि इसके साथ मेरा भी नाम आया, तान्या प्रदीप ग्रोवर. So that was the best day of my life. और my parents are my motivation, like, for everything in my life. And also my sister, she is like, I can't express feelings for her because the way she motivated, now I don't think nobody could ever do this for anybody. Like, she motivated me at every step of life. So yeah, my parents, my family is my motivation. Okay. Ma'am, you solved papers orally or in writing? Past Okay. paper. ओके. सो मेरे साथ कैसा है ना, मेरे को राइटिंग में थोड़ा इशू नहीं आता है. मतलब मेरा पेपर भी कंप्लीट हो जाता है. लाइक इफ आई वुड टेल यू कि प्रोफेशनल एग्जाम्स में मेरा 5-10 मिनट्स पहले हो जाता था कुछ पेपर्स. तो मेरे साथ ऐसा इशू नहीं है. इफ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन हु फेस दिस इशू कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता है, सो गो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस. अदरवाइज यू कैन सॉल्व इट ओरली. Should we prepare notes after the first reading itself or afterwards? Okay. As I told you, prepare running notes when your faculty is teaching you. That will be the best thing. And after that, when you revise yourself, when you read it for the first time, ना कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मिस आउट हो जाएंगी फर्स्ट टाइम में, वो सेकंड थर्ड टाइम में याद आएंगी. सो ट्राई टू राइट अ कीवर्ड ना, ट्राई टू राइट अ कीवर्ड साइड, मतलब पैराग्राफ के साइड में मॉड्यूल में लिखना स्टार्ट करो. जब भी आपको लग रहा है कि कुछ ऐड हुआ है, like you missed something, then write it again. So do it this way. Ma'am, from where you prepared amendments? Only class lectures, or you visited various sites of SEBI, MCA to cover amendments, or class lectures were sufficient for amendments? Okay. Class lectures are sufficient, but then you can also refer the supplements of institute. वो उसके बियॉन्ड तो वैसे भी कुछ नहीं आने वाला ना, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने इशू किया सप्लीमेंट्स. सो पहली बात तो ये कि क्लासेस में कवर हो जाता है अमेंडमेंट्स. आफ्टर दैट यू कैन रिफर द सप्लीमेंट्स. जस्ट ट्राई टू रीड द सप्लीमेंट्स. जो चीज वहां पे आपको नहीं समझ में आ रही, ट्राई टू आस्क सर कि सर मेरे को ये नहीं समझ रहा. ही विल डेफिनेटली गाइड यू अकॉर्डिंगली. सबका इंडिविजुअल है. मेरे को टैक्स हार्ड लगता है, मेरे को कंपनी लॉ हार्ड लगता है. सबके इंडिविजुअल अलग अलग सब्जेक्ट्स है, सबको अलग अलग हार्ड लगता है. तो एक जनरल सजेशन कि जो सब्जेक्ट हार्ड लगता है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें. भाई आई टोल्ड यू ना, जो हार्ड लगता है उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, उसको फेवरेट बनाने का ट्राई करो. दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी. अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो ट्राई सॉल्विंग पेपर्स. ओके. स्टूडेंट की अच्छी डिमांड है. Ma'am, will you help us in writing papers? How should we write? Can you solve one paper with us? अच्छा. राइटिंग में ना, मतलब व्हाट यू कैन डू इज जस्ट, जब भी पढ़ भी रहे हो ना तभी भी, इफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ राइटिंग, इफ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन हु हैज द प्रॉब्लम ऑफ राइटिंग, तो डू वन थिंग ना, व्हेन यू आर रीडिंग, हर एक चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस होते हैं, मॉड्यूल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं. सो आफ्टर एवरी चैप्टर ना ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस इन राइटिंग. तो इट विल बी हेल्पफुल आई गेस. I never tried, but yeah, you can do this. Should we do all the chapters or should we leave some portion from every subject? It is very difficult, sir. What you did, you can share your experience. Yeah, in executive, मैंने छोड़े थे, but in professional मैंने नहीं छोड़ा.
to be professional में मतलब कितने on an average, मतलब say a subject is having 19 or 20 chapters, how many should we do? Each and every chapter, because you know sometime what happens is कि आप ऐसे सोचोगे कि ये चैप्टर में से नहीं आएगा तो मैं ये नहीं पढ़ती, मतलब इसमें से आया भी तो ठीक है वो उधर कवर हो जाएगा, बट समटाइम्स व्हाट इंस्टीट्यूट डू ना कि वो पूरा चैप्टर ही स्किप कर देते हैं, क्या पता जो आपने बहुत अच्छे से किया हो वही स्किप कर दे वो. So never do this thing. That was my mistake in executive too, कि मैंने छोड़ा था. So don't do this. At least इतना पढ़ लो कि उस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आया ना, you are able to write something related to that. At least if you are facing any kind of problem in a single chapter, like you think it's very difficult or something like that, so do one thing, just try to figure out a single answer that will fit in every kind of question, or it will be related to something. Like what will happen is कि 5 में से एक तो मिलेगा, एटलीस्ट आप कुछ लिखोगे तो कुछ तो मिलेगा. इफ यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग ना, तो एग्जामिनर विल आल्सो नॉट बी एबल टू गिव यू एनी मार्क्स. So it's better to write something. Ma'am, live lecture is better or recorded lecture is better? I have no like experience regarding this, but professional में live lectures होते थे, like live Zoom lectures होते थे, so it's better. Recorded में you are not able to ask questions ना. So that's why I think recorded lectures इतने ज़्यादा productive नहीं होंगे, because on the spot your queries are not being solved. And वहाँ पे अगर आपने concept गलत समझ लिया तो you will be in problem. So it's always better कि कुछ interactive session होना चाहिए. Okay. I'm unable to identify after seeing paper that the question is from which chapter. Where I am lacking. Okay. Yeah, ये problem आती है, ठीक है. For this, what you can do is कि revisions करो. It will help you. Keep on revising the things and simultaneously solve the papers. It will help you. Okay. So I think mostly I'm done with all the questions. अगर किसी का भी question है और pending रह गया है which I am unable to cover up, please एक बार वापस भेजो. I'll be looking up for that. Of course, till that time I would like to add about the revision strategy. What you can do is now when you're revising for the first time, like try कि आप उसको ऐसे कर रहे हो कि this is the end. ठीक है, उसके बाद जब भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिवीजन होगा या जितने भी रिवीजन होंगे जो भी आप करने वाले हो, ट्राई टू शॉर्टन द टाइम. ओके, फर्स्ट रिवीजन से सेकंड रिवीजन का टाइम शॉर्ट होना चाहिए. ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, दिस विल हेल्प यू इन एग्जाम्स. ओके, जब भी एग्जाम होंगे ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके इतने रिवीजन हो चुके होंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एक चैप्टर करने में कितनी देर लग रही है. नाउ व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं एक चैप्टर पढ़ती थी, सो आई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज्ड टू राइट द आवर्स कि मेरे को ये चैप्टर पढ़ने में कितने आवर लगे. उसके अकॉर्डिंगली मैंने डिसाइड किया कि मेरे को एक सब्जेक्ट में इतने आवर्स लग रहे हैं, तो मेरे को एग्जाम डे में इतने आवर्स चाहिए. अगर वो प्रॉपरली मेरे को नहीं मिल रहे, लाइक एग्जाम्स कंटिन्यूस होते हैं, कोई छुट्टी नहीं होती है, तो आपको वो अभी से ही थोड़ा तो माइंड में रखना पड़ेगा कि आपको कैसे करना है. तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज, आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान करो. उतनी ज्यादा बार रिवीजन करो उस चैप्टर को जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ताकि एंड डे पे वो वहां पे टाइम शॉर्ट हो जाए. तो आपके पास एक पूरा टाइम स्केड्यूल का शीट होगा कि हाँ मेरे को इस चैप्टर में इतने आवर्स लग रहे हैं, इस चैप्टर में इतने आवर्स लग रहे हैं. उस हिसाब से आप शॉर्टन कर सकते हो टाइम को. तो एग्जाम डे पे आपको उतना ही कम प्रेशर आएगा. दिस इज द बेस्ट वे यू कैन डू रिवीजन. Mobile phone is the biggest distraction. I'm not able to study or focus while studying for online lectures. I many times see WhatsApp or Instagram in between. Have you faced such kind of problem? How you overcome this problem? मैंने Instagram, Facebook सब बंद कर दिया था. This is the only solution for this problem. But totally untouched social media से कैसे चलेगा? हाँ, मतलब फेसबुक तो मैंने कर ही दिया था. इंस्टाग्राम थोड़ा थोड़ा रहता था. Starting or in the last 2-3 months you did? Last 2-3 months. Anyway, पता है क्या होता है कि आप
इफ यू हैव टारगेट्स ना, तो आपको वो अचीव करने ही है। उसके बाद आप मोबाइल चला रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, आप पार्टी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दैट डजंट मैटर ना। मतलब आप अपने आप से लॉयल रहो, अपना टाइम कंप्लीट करो, उसके बाद आपको जो करना है आप करो, कौन रोक रहा है? वो एक बीप आते ही कंट्रोल नहीं होता ना। उसके लिए आपको एंड सोचना है। आई टोल्ड यू ना, एंड सोचो। While studying, you used to keep your mobile phone together with you, or you used to keep it at a separate place, switch off or something like that? समटाइम्स मैं अपने पास रखती थी, और समटाइम्स मेरे को ऐसा लगता था कि अब लिटरली बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं मोबाइल 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 कर रही हूँ, तब मैं ऑफ करके रख देती थी। मतलब वो वही है ना कि इट इज योर माइंडसेट ओनली। अगर आपको मोबाइल देखना है ना, आप तभी देखोगे। अगर आपने मन में बना लिया कि यू आर नॉट गोना टच योर मोबाइल टिल यू कंप्लीट दिस चैप्टर, यू विल नेवर डू दिस। इट इज ऑल द माइंड गेम, यू नो। माइंड will play with you at that point of time, and you have to control your mind. That's the biggest thing. Though you have not seen number of hours while studying, but please tell us approximate how many hours to study in a day. Approximate. अगर आप 4-5 चैप्टर्स को लाइक इफ यू आर लाइक क्या बोलते हैं, लाइक अगर आप प्लान कर रहे हो फॉर 4 to 5 चैप्टर्स, ओके, तो एटलीस्ट उसको करने में आपको जितना टाइम लग रहा है 10 hours 12 hours, you have to do this. In short, instead of number of hours, we should keep a target as 5 chapters per day. Yeah, exactly. That's the best thing na. If you do it that way na, तभी आपका syllabus complete होगा, because we all know syllabus is very vast. So if you are not focused from the very start, तो end तक आते आते तो tension ही आएगा और stress आएगा, and that is not good. ये तो सबके साथ में होता है। हाउ यू टैकल सच अ सिचुएशन, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे, लास्ट के एग्जाम चालू होने से 5-10 डेज पहले तो एक सुपर प्रेशर रहता है, यूं लगता है कुछ भी याद नहीं, हम सब भूल गए, तो उस टाइम पे क्या करें? वो चीज मेरे साथ भी हुई थी। आई कीप ऑन कॉलिंग सर इफ ही रिमेम्बर्स कि सर मैं तो सब भूल चुकी हूँ, मेरे को नहीं पता अभी मैं क्या करूंगी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सर टोल्ड मी टू सॉल्व द पेपर्स। देखो, देयर विल बी 2 consequences, ओके। या तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको सब आता है, अब मेरे को नहीं पढ़ना, मैंने बहुत पढ़ लिया, या तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा। दोनों चीजों का सॉल्यूशन पेपर सॉल्विंग है। कैसे? First thing, if you are feeling that you know everything, if you solve the paper now, you won't be able to solve it. If by chance you won't be able to solve it, you will come to know I need more practice, I need more revisions. ठीक है, this is the one thing. Now if we talk about the second thing कि आपको कुछ नहीं आता, at that point of time you should again solve the papers. तभी आप solve करोगे, आपको लगेगा मेरे को ये वाला question भी आ रहा है, ये वाला question भी आ रहा है, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मेरे को आता है, ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ भी नहीं आता। सो दोनों चीजों का सॉल्यूशन इज पेपर सॉल्विंग। I'm very confused about joining the classes. How should I select which class to join? ये तो बहुत ही ऐसा जनरल क्वेश्चन पूछ लिया इसने। हाँ, मतलब इसका आंसर तो क्या ही होगा, ये तो फिर चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको जो अच्छा लग रहा है लाइक आप करो। डेमो लेक्चर्स ले लो अगर ज्यादा ही हो रहा है तो। Can you give certain criteria for selecting the class? Because there are too many options available because of online lectures. See, you should have a mentor जो आपको throughout guide करे, okay? So this is the one thing, this is one of the factor that you should keep in mind, a good mentor, okay? Now अभी की situation के हिसाब से if I talk, according to me, don't go for recorded lectures, because आप recorded lectures में जाओगे ना, आप खुद lazy हो जाओगे, आपको लगेगा मेरे पास lectures पड़े हैं, मेरा जब मन करेगा मैं सुन लूंगी। This is not the case. You should be disciplined throughout the journey, okay? तो it's better if you have live lectures. आपको एक particular time पे lecture attend करना है. That is the most important thing. If you are doing that, and live lectures have many advantages, like you can ask your query on the spot. And those lectures are also recorded, so you can also demand those recorded lectures again. So this is the best way you can select your class, like a good mentor. Don't go for recorded ones. Okay, my classes are already over, so how should I proceed to make timetable? Any tips regarding it? Okay,
now if I come back to the timetable thing, do one thing. सबसे पहले तो एक particular time slot दे दो कि मेरे को इतने दिन में एक बार सिलेबस कंप्लीट करना ही है. दिस इज द बेस्ट वे टू मेक अ टाइम टेबल. एक स्लॉट तो बना ही दो कि हाँ इतने डेज में मुझे मेरा पूरा रिवीजन कंप्लीट करना है. सो नाउ स्ट्रेटेजाइज इट इन दैट वे कि आप एटलीस्ट अगर इफ यू आर इन प्रोफेशनल try to cover 4 subjects a day and then second day 5 subjects a day because MCS और insolvency में इतना issue नहीं आएगा. तो you have overall 7 subjects ना, so you can plan accordingly. उसको उसका एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना दो कि इतने डेज में मुझे मेरा रिवीजन फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करना है. और फर्स्ट रिवीजन हमेशा बेस्ट होना चाहिए. ऐसा होना चाहिए कि इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद एग्जाम्स है, तो फर्स्ट रिवीजन हमेशा ऐसे होना चाहिए. सो डू दिस थिंग. ओके, उसके बाद आई टोल्ड यू ऐसे ऐसे प्लान बनाते जो, लेकिन लाइक आपने अभी 1 महीने का बनाया कि 1 महीने में मुझे रिवीजन करना है. उसके बाद वो 30 डेज को शॉर्टन करके 25 डेज कर दो, फिर 20 डेज कर दो, फिर 10 डेज कर दो. 10 डेज पे आप जब आ गए, दैट मीन्स नाउ यू आर एबल टू रिवाइज द होल सब्जेक्ट इन 10 डेज. ओके, सो एग्जाम डे पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. सो दिस इज द बेस्ट वे. The paper of tax December 2020 professional was totally different from the past papers. There were so many theory questions asked, especially direct tax. So how should we prepare for tax and resolution of corporate dispute paper? Any tips for the same? Okay. Did you find it different? First तो उसका आंसर different था या पुराने papers में से वैसे ही लग रहा था tax का paper? Different tha sir. If I talk about all the papers na, like if I talk about MCS thing na, like MCS simplest thing, uska bhi pattern alag tha is baar. मतलब the pattern they are following from past years na, wo is time wo cheez nahi thi. I agree with this. Now if I talk about this tax thing, टैक्स में डायरेक्ट टैक्स 30 मार्क्स का है. ठीक है, आप उसमें ना स्मार्ट वर्क करो. अब स्मार्ट वर्क आप कैसे कर सकते हो? GAR, GAAR, DTAA. Okay, and then if we talk about 17th chapter जिसमें टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस है, तो वो एक क्वेश्चन आप कर लो कि ये इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको कि कौन सा प्लानिंग होता है, कौन सा मैनेजमेंट होता है, कौन सा इवेजन होता है. एंड देन इफ आई टॉक अबाउट GAR, DTAA एंड देन मैट, AMT, ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठाओ ना जो मतलब इंस्टीट्यूट पूछता है. तो प्रेशर ना लेने से बेटर है कि स्मार्ट वर्क किया जाए. यहाँ पे गार के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, फिर वो एक पोयम होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, उसके क्वेश्चंस आते हैं. सो ट्राई टू फिगर आउट थिंग्स, ट्राई टू फिगर आउट थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल. नेवर स्टिक टू वन थिंग, नेवर स्टिक टू ओनली थ्योरी, ओनली प्रैक्टिकल. स्ट्रेटेजाइज इट इन, ब्रिंग द बैलेंस इन बिटवीन बोथ द थिंग्स. ओके, तो आप डीटी में ऐसे जा सकते हो. नाउ जीएसटी में 10 मार्क्स का कस्टम्स होता है, उसमें भी 5 मार्क्स का एक वैल्यूएशन का क्वेश्चन आता ही है. लाइक वो एक फिक्स है कि वो आता ही है. एंड फिर जीएसटी वाला जो पार्ट है, तो हमें नीरज सर ने पढ़ाया था, नीरज शर्मा सर, तो ही टॉट अस वेरी वेल. लाइक उसमें मेरे को कभी प्रॉब्लम आया ही नहीं. एंड सेम विद रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, उसमें तो मैम गेव अस अ शीट कि हाँ मतलब आफ्टर एवरी चैप्टर शी गेव अस अ शीट कि these all are the possible questions which institute can ask. तो most of the questions were from those sheets only, तो इतना इश्यू नहीं आया. और हाँ, I would like to tell you कि resolution of corporate disputes में ना do one thing, वो ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप उसको छोड़ दोगे ना तो आप भूल जाओगे. So please be in touch with that particular subject. At least with that particular subject, be in touch. Okay, so I'm done with all the questions. एक अलग out of the way question है, if you want to answer. I have severe social anxiety, so how should I face interview? हाँ, इसका एक solution है कि try to talk with yourself in front of mirror. Please do This it. is a perfect solution. मैं भी बहुत सारे students को देता हूँ. It will help you, मतलब like anything. बहुत अच्छा solution है, मतलब try it and revert back to me, please. Okay. Okay. Any further questions? किसी भी student के हैं?
I think most of the questions we have covered up. Okay, एंड sir. जो एक स्टूडेंट ने जो सजेशन दिया था वो डेफिनेटली मुझे चाहिए कि यू शुड इम्प्लीमेंट इट, एटलीस्ट एक कुछ ऐसा लाइव सेशन रख के, मतलब लाइक उनको थोड़ा सा हेल्प करना इन हाउ टू राइट इन पेपर्स, कैसे Okay. सोचना और कैसे क्या करना. सो वेन एवर यू हैव टाइम, मे बी नॉट द एंटायर पेपर बट एटलीस्ट 40 to 50 मार्क्स का पेपर अगर हम ऐसे सॉल्व कर पाए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट. सो जब भी कुछ टाइम रहेगा, and if you are ready for it, definitely I'll arrange for a session to help all the Okay, sir, no students. problem. Sure, we'll do it. Okay. And professional student का question है, classes has started, so is it necessary that I start studying other subject which has not been started in classes yet for Yeah, professional? you can do this in professional ना. You can go for drafting, you can go for governance. मतलब ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि अगर आप खुद से भी पढ़ोगे तो आपको थोड़ा तो समझेगा, बिकॉज अगर आप पहले से पढ़ के रखोगे तो जब भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा ना, तो इट विल बी द सेकेंड टाइम फॉर यू, सो यू विल बी इन एडवांटेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. Okay. So I think that's all for the day. Very मतलब students के behalf पे big thank you for solving their queries and मतलब like उनके जो भी डाउट्स है क्लियर करने के लिए. ऐसे स्टूडेंट ये डाउट्स आते हैं, इनफैक्ट व्हेन आई वाज स्टूडेंट मेरे माइंड में भी ये सब डाउट्स आते ही थे, बट अल्टीमेटली ये रहता है हम कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं फॉर द एग्जामिनेशन. एंड एज यू सेड, हमको एंड रिजल्ट के बारे में सोचना है तो हम उस डायरेक्शन में पढ़ते हैं. सो थिंक ऑफ इट दैट आई हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन. क्लियर होने के बाद क्या होगा वो चीज में रखोगे तो बूस्टअप होगे पढ़ने के लिए. ये सबसे बिगेस्ट ट्रिक होता है जो मैंने भी शायद मेरे एग्जाम्स के टाइम पे फॉलो किया था. एंड द सेम मतलब तानिया ने भी बोला, इट वाज मतलब लाइक वेरी करना जरूरी है बहुत. एंड रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करो, देन एक फोकस आएगा. मतलब अदरवाइज Actually, I am here today just to solve the queries of many students. Like there are many students who are asking me doubts again and again, so that's why I said yes to you. Like, sir, we'll do it because it's actually needed right now. If I can do anything, so if I can do this, so anybody can do this, na. So if I share my experiences and it will be helpful for them, so I'll be very happy. Okay, one last question from my side. Okay. How important it is like the way pattern of study as we used to do earlier, कि हम पहले पढ़ते हैं एंड बाद में मतलब लाइक ऐसा होता है कि वी सॉल्व पेपर्स एट प्रोफेशनल लेवल. मतलब लाइक फैकल्टीज आपको डिफरेंट बोलते हैं, फर्स्ट सी द क्वेश्चंस एंड देन स्टडी. सो व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट मतलब पैटर्न हमें कैसे करना चाहिए that will help in examination? Okay, if I talk about executive first, तो उसमें कैसा रहता है ना कि first try to read all the things, then jump on papers. Okay, because अगर आपको provisions पता है तो ही आप पेपर को solve कर पाओगे, because executive is all about laws. मतलब there are different laws in executive. Now if I come back to the professional thing, तो professional में I also mentioned this thing कि पहले पेपर solve करना इसलिए important है ताकि when you are reading ना, you will come to know कि from this line, this particular paragraph, this type of question can arise. तभी आपका माइंडसेट ना ऐसा ही बन जाएगा कि जब आप पढ़ रहे होगे ना तो आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा, यार इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है. Are you getting me? So ऐसा होता है कि that's why sir told us to solve the papers first, because it will help you in studying only. While studying, you will come to know कि this type of question can arise. So you will study from that perspective, and it will help you to score better and stand out. मतलब सब हार्ड वर्क करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं that makes you stand out from all the people out there. I think ऐसे suggestions like how to appear for the examination, I give it in every batch, and they are generally the same suggestions. कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी, ट्रैकर कैसे बनाना है, प्लानर कैसे बनाना है, ये सारा हर बैच में बताते हैं. तो श्योरली आपके बैच पे भी बताया ही है. Yes, Have you followed that thing? Does that really helps? या हमें खुद का कुछ ट्रैकर या खुद का कुछ वैसे बनाना चाहिए that is more helpful? Okay. See, sir told us many things. I followed all of them, but because हमारा ये जून और दिसंबर का वो सब हो गया ना,
because of this COVID. So there are many things that I have followed from my side only. Like sir told us to make timetables, to like solve papers. These two things helps us a lot, like helps our whole batch a lot. जिसने भी follow किया होगा उसको पता होगा कि ये दो चीजें is very important. Okay, that's all. Thank you very much, Tanya. Thank you, sir. चलो, कुछ और मैं सेशंस के लिए डेफिनेटली इन्फॉर्म करूंगा स्टूडेंट्स को. सो दोज हु आर इन टच, अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब करके रखो. दैट लेक्चर विल आल्सो बी कमिंग अप लाइव जब भी आंसर राइटिंग और के लिए होगा. सो यू विल बी हेल्प, मतलब लाइक यू विल गेट ऑल द टिप्स ऑन हाउ टू राइट आंसर्स इन द एग्जामिनेशन. ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा. विल बी मतलब लाइक कमिंग आउट विद दिस लेक्चर वेरी सून. Okay, sir. Thank you all of you. All the best, all of you.